लिंक्डइन का जो कॉपीराइटर है, जो दिखाता है कि मैं कॉपीराइटर हूँ ना, वो टेक्निकली कॉपीराइटर नहीं होता। ऐसी कौन सी एक चीज है जो कि उनको लाइक होल्ड बैक करती है एक गुड कॉपीराइटर बनने से? ये 1%, 2%, 10%, 25% मेरे को समझ में नहीं आता। लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी वरिड अबाउट वैलिडेशन। You have also worked with Indian advertising agency and also with international advertising agency. बट वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। माई लिंक्डइन डजंट डिफाइन। Creativity is like a universal thing. तो सब जगह सेम सो है, लाइक ऐसा कुछ है? it's not a rating game. Only difference which I feel is don't ask it so quickly also. एजेंसी ब्रांड से कैसे डील करती है? It's not about what the other part of the LinkedIn world thinks about it. मैंने ये रील बनाई, कोई कुछ बोल नहीं रहा है मेरे रील के ऊपर, तो मायूसी बहुत होती है राइटर्स को। हमें कैसे पता लगेगा कि इस एड के थ्रू इतना मतलब सेल्स हुआ है? I will use a bad word here, fuck up badly sometimes. It's okay. मैंने LinkedIn पे पोस्ट डाली, किसी ने कमेंट नहीं किया। मैंने ये एड बनाई, किसी ने देखा नहीं। ब्रांड रिकॉलिंग यहाँ पे आई थिंक मिस है यहाँ। और B2B, it doesn't matter. It's H2H. You know what H2H is? नो। Fuck ups में ही सीख लेते हो आप. You know, nobody's perfect. So don't worry about being perfect. You are not accused word, but you are actually accused. Honest बताओ, जिनके लिए भी मैंने लिखा है ना, वो मेरी कॉपी लेके चेंज करते हैं। So you have trained a lot of copywriter training. There is this girl called Adyasha Roy Tomar. Adyasha, I think that's how she pronounces it. I love her writing. पीयूष पांडे सर ने कभी कॉपीराइटिंग कोर्स की थी। You know some LinkedIn secret because you got viral just by putting a single dot. एक बार आपने अकाउंट जीत लिया ना, Yeah. that is problem starts actually. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। So first of all, Shanti, welcome to my Make It Happen podcast. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Anisha, for having me. Really appreciate it. So before we dive into like everything, I would love to start like how did advertising happen for you? I think generally people in advertising in those days when I started used to stumble upon it. Today, I think people choose to become writers. You see a lot more people are active today in being writers because technology allows you to be writers today. But when I started around 1997, so almost 30 years back, 97, 98, there weren't many copywriters around. Copywriting was not a profession everyone chose. सबको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या तो MBA करना था वो टाइम। राइटर या जर्नलिस्ट, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना था या राइटर बनना था या कॉपीराइटर बनना था तो बहुत बड़ी बात होती थी वो टाइम में। बट आई थिंक आई वाज इन कॉलेज, आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन dramatics, elocutions, quizzes, writing. I was part of societies. So I think that came naturally. जो दो मैंने कॉमर्स किया, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है। I got into a student magazine where I became a writer first, and then I got attracted to advertising where I felt it was interesting as a profession. And yeah, I mean, I just sort of बोलते हैं ना, accidentally enter हुआ thinking मेरी skills हैं उसके लिए, and been at it for like almost 30 years. Okay, Shanti, there is one more नसीब thing. नसीब होती है, सॉरी, नसीब होती है उसमें, तो नसीब की बात है वो। Yeah, I agree. Even मेरे साथ भी यही हुआ है. मैं भी like I can call myself like accidental copywriter. I'm also from the commerce background. Correct. मैंने I think आपका most copywriters are accidental copywriters. So, yeah. yeah, we can say. Like मैंने Hmm. आपका LinkedIn check किया है, like you come in the list of like top 200 creators, and you have also done like ghostwriting for CEO or CCO, and like Yeah. done like so many things. So like अगर आज के टाइम पे अगर किसी को like 1% कॉपीराइटर बनना हो, like 1% वाले आज के टाइम पे,
Like we are not talking about हम्म, like 90s era, like we are talking about today. So like yeah. one thing, कोई मतलब like क्या कर सकता है, like अगर मैं अभी अपनी बात करूँ, तो अगर मुझे सिर्फ 1% बारे में बनना है तो मैं क्या कर ये सकती ये हूँ? ये 1%, 2%, 10%, 25% मेरे को समझ में नहीं आता। ये सब लिंक्डइन का नॉनसेंस है, टू बी ऑनेस्ट। 1% कॉपीराइटर क्या होता है, 10% कॉपीराइटर क्या, कॉपीराइटर होता है, राइट? सो व्हाट डिफाइंस योर जर्नी एज अ गुड कॉपीराइटर इज द ब्रांड्स दैट यू वर्क ऑन। सिंपल। आप जिन ब्रांड्स पे काम करते हो, अच्छे ब्रांड्स पे अगर काम करोगे, अच्छे एड्स निकलेंगे आपके, वेदर वो प्रेस में हो या टीवी पे हो या डिजिटल पे, सोशल पे हो, आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, राइट? मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, आज आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कि लिंक्डइन का जो कॉपीराइटर है, जो दिखाता है कि मैं कॉपीराइटर हूँ ना, वो टेक्निकली कॉपीराइटर नहीं होता। एक तो एक्सपीरियंस लगती है आपको, अच्छे एजेंसीज में काम करना पड़ता है उसके लिए। You need to work on really good brands. You need to work with good directors. You need to work with good radio artists. You need to work with good photographers. You need to work with good uh, art directors, designers, strategists, planners. आजकल मुझे ये कीबोर्ड वॉरियर कॉपीराइटर लग रहा है, जो अपने डेस्क पे बैठा है और सोच रहा है मैं कॉपीराइटिंग कर रहा हूँ, मैं 6 फिगर इनकम कमा रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। असलियत में क्या है, क्या हुआ, आप आपने अच्छी एजेंसी में काम किया है नहीं किया है, अच्छे ब्रांड्स पे काम किया है नहीं किया है, वो ज्यादा महत्व रखता है। देर आर सो मेनी ग्रेट कॉपीराइटर्स इन इंडिया हु डोंट इवन एग्जिस्ट ऑन लिंक्डइन। तो हाँ, वो लिंक्डइन पे उनका प्रोफाइल भी नहीं है, बट वो बड़े बड़े ब्रांड्स पे, करोड़ों के ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं, उनके फिल्म्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका काम बात करता है उनके लिए। yeah, they सो don't need to show off, right? yeah, they don't. So I honestly don't buy into this at all. I'm old school. I believe that if you want to make a name for yourself in advertising, the advertising fraternity, जो लोग advertising में काम करते हैं ना, वो आपको याद रखें, बस बड़ी बात है, आपको काम मिलते रहे, you know. It's not about what the other part of the LinkedIn world thinks about you. So for me, what is important is experience, बहुत important ये फील्ड में, राइट? मैं जब 25 साल का था, मैं I would never dare to tell people that I am a great copywriter, because at 25 you cannot be a great copywriter. You have not even experienced life. You have not even worked on 50 accounts. You have not even led a team. How can you call yourself a good copywriter? आपने एक फिल्म नहीं बनाई है, आपने एक फिल्म डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया है, आपने एक एडिटर के साथ काम नहीं किया है, आपने फोटोग्राफर के साथ काम नहीं किया है, तो किस बिना पे, किस वजह से आप खुद को 1%, 2%, 10% बोल रहे? वो बात ही नहीं। माई लिंक्डइन डजंट डिफाइन मी। ओके, यस, आई हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन एडवर्टाइजिंग है। मैं जो 25, 27, 28 साल से काम कर रहा हूँ, दैट इज माई एक्सपीरियंस, नॉट द 5 or 6 or 8 years that I have been on LinkedIn. So LinkedIn is only my way of expressing myself, not to say that oh I'm a great copywriter. I in fact I don't ever, मैंने अब तक ये क्लेम भी नहीं किया है कि मैं ग्रेट कॉपीराइटर हूँ। मेरे से बहुत दिग्गज, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन कॉपीराइटर्स हैं बाहर। I work with some of the best copywriters in the world who don't even talk about themselves. But it is the idea कि आप जब कॉपीराइटर बनते हो ना, तो आप स्टूडेंट रहते हो for the rest of your life. No. So for me, I'm still, even at 50, I believe that there is so much to learn. And there are so many people you can learn from. मेरे को till I retire or till I don't feel like I belong in the profession anymore, I will keep learning. So I hope people, like bio. yeah, so young people also should not worry about यार तो आप 1% में हो या 2%, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये it's not a rating game. It is a game where you have to be good enough to last for years. You know, it's like जावेद अख्तर साहब कभी बोले क्या कि मैं 1% लिरिसिस्ट हूँ या 1% डायलॉग राइटर हूँ? नहीं, दुनिया बोलती है उनको। उन्होंने कभी खुद नहीं कहा है कि मैं गुलजार साहब से बड़ा हूँ, या मैं आनंद बख्शी साहब से बड़ा हूँ, या मैं फैज से बड़ा हूँ, या मैं 1% में आता हूँ। नहीं, कभी A.R. रहमान साहब ने कभी नहीं कहा है ऐसे, ना लता मंगेशकर जी ने कभी कहा है। तो you know, when you're an artist, when you're a good artist, you're a good creator,
your work will speak for itself and you will get the work based on that. You don't have to go to Instagram or LinkedIn or anywhere and band baja saying that I'm this and that. Doesn't matter. So you have trained a lot of copywriter training. So like ऐसी कौन सी एक चीज है जो कि उनको लाइक होल्ड बैक करती है एक गुड कॉपीराइटर बनने से? Right. So see, copywriting बहुत ही सब्जेक्टिव प्रोफेशन, या क्योंकि आप जो क्रिएट करते हो वो आपके दिमाग से क्रिएट करते हो. आप प्रेजेंट करते हो किसी और को, क्लाइंट को, तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो उसके ऊपर होता है. क्लाइंट को अच्छा लगा, फिर कंज्यूमर को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा वो कंज्यूमर के ऊपर होता है. राइट. सो एवरीथिंग इज बहुत सब्जेक्टिव होता है. तो ये सब्जेक्टिव फील्ड में क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ या थिंक कर रहा हूँ किसी को अच्छा नहीं लगा क्या. तो लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी वरीड अबाउट वैलिडेशन. यू नो, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली, किसी ने कमेंट नहीं किया. मैंने ये ऐड बनाई, किसी ने देखा नहीं. मैंने ये रील बनाई, कोई कुछ बोल नहीं रहा है मेरे रील के ऊपर. तो मायूसी बहुत होती है राइटर्स को. राइटिंग इज अ वेरी ईगोइस्टिक प्रोफेशन. यू नो, इसमें ईगो जरूरी है राइटिंग में. ऐसा नहीं कि ईगो जरूरी नहीं है. यू हैव टू हैव एन ईगो एज अ राइटर, बट यू शुड नॉट लेट द ईगो ओवरपावर योर स्किल. आपकी या आपकी जो रुचि है, आप क्यों राइटर बने हो. इवेंचुअली यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि या विराट कोहली क्रिकेटर बना, he became a cricketer because he loved cricket, not because he wanted to earn crores of rupees. Crores of rupees have happened by the side because he's an excellent cricketer. But पहले वो अच्छा क्रिकेटर था, क्रिकेटर बना, फिर पैसे आए उसके लिए, राइट, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास था. तो एडवर्टाइजिंग सिमिलर है. एडवर्टाइजिंग में डोंट चेज मनी, मनी विल चेज यू इफ यू आर गुड इनफ. यू नो, तो या जब भी यंग राइटर्स के साथ बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे यंग राइटर्स के साथ बात किया है. राइट, आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 1,000 पीपल इन द लास्ट 4-5 years. आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग एंड ओनली वन थिंग कि राइटिंग में जॉय फाइंड करो. राइटिंग शुड मेक यू हैप्पी. यू नो, आपने पेन पेपर या आप डिजिटली लिख रहे हो या जो भी सोच रहे हो, अगर आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही है वो जॉब से, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप मायूस हो रहे हो कि यार मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ इससे, या आप सोच रहे हो मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही है, डोंट वरी अबाउट इट. राइटिंग इज अ लॉन्ग फील्ड. यू कैन राइट टिल you are 80, 90, 100 also if you have the brain and the energy for it. राइटिंग ऐसा नहीं कि आप 40 पे रिटायर हो जाओगे. अच्छे राइटर्स, गुलजार साहब आज भी लिख रहे हैं, जावेद अख्तर साहब आज भी लिख रहे हैं. राइट. तो ऐसा नहीं है कि राइटिंग में कोई रिटायरमेंट एज होती है. तो आप वो हिसाब से मत सोचो. तो ऑलवेज टेल यंग राइटर्स दैट फाइंड अ जॉय, फाइंड अ रीजन कि आप क्यों राइटर बने. एक बार आपने रीजन डिफाइन कर दिया ना, फिर लाइफ इजी बन जाती है. मुझे लगता है यंगर राइटर्स एंड जी यंगर, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द यंगर जनरेशन. आई थिंक यू ऑल आर थिंकिंग मच मोर क्लियरर देन वी थॉट. ओके, आप लोग अच्छे स्पेस में हो क्योंकि आप डिमांड करते हो कुछ चीज़ें, आपको चाहिए कुछ चीज़ें लाइफ में. हम नहीं थे ऐसे. हम थोड़े मीक, थोड़े डर के जीते थे. आप लोग बिंदास जीते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट Gen Z, Gen A, younger generations today, right? But उसमें only difference which I feel is don't ask it so quickly also, right? जब see, there are two goddesses in Hinduism. I always say that, एक लक्ष्मी होती है, या और एक सरस्वती होती है, right? Saraswati is the goddess of knowledge and wisdom, and Lakshmi is the goddess of wealth. You need to pray to both. And in writing, your Lakshmi is coming out of your Saraswati, right? आपकी जो विद्या है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल्स हैं, उसमें से लक्ष्मी जनरेट हो रही है. तो आप सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागोगे ना, फिर सरस्वती बोलेगी यार पैसा कहाँ से आ रहा है, लक्ष्मी से या सरस्वती से. तो सरस्वती की पूजा पहले एज अ राइट, डू द राइट प्रेयर्स फॉर योर नॉलेज. Learn, be curious, travel, meet people, work with interesting people, work on interesting brands. I will use a bad word, fuck up. Fuck up badly sometimes. It's okay. Fuck ups में ही सीख लेते हो आप. Nobody is perfect.
तो डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट, जस्ट बी योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड एंड थिंग्स विल कम। पैसा आएगा आपके पास, शोहरत आएगी आपके पास, जो भी आप चाहते हो आएगी, लेकिन उसके लिए आपका बेस जो है राइटिंग का वो सॉलिड होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Like I have also noticed कि आपने लाइक B2B के लिए भी लिखा हुआ है और B2C ब्रांड्स के लिए भी लिखा हुआ है। तो Yeah. like when we write for two different brands like B2C और B2B, तो कोई प्रॉब्लम जो हम मेजरली हम फेस करते हैं, या फिर हम किस तरह से, मतलब वो दोनों डिफरेंट कैसे हैं? See, very different, to be honest, right? B2C, for those who don't know, is business to consumer, right? Yeah. And B2B is business. तो इसमें टारगेट ऑडियंसेस अलग है। सो B2C जो होता है वो लार्जर कैटेगरी होती है ना, उसमें टूथपेस्ट भी आएंगे, चॉकलेट्स भी आएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी आएंगे, चिप्स भी आएंगे, इंश्योरेंस भी आएंगे, गाड़ी भी आएंगे, राइट? यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर, सो देयर द इमोशंस ऑफ द कंज्यूमर आर वेरी डिफरेंट। टूथपेस्ट से जो कंज्यूमर को चाहिए और गाड़ी से जो कंज्यूमर को चाहिए वो अलग बातें होती है, राइट? So you need to know the emotion of the consumer, what is the need of the consumer. B2B में क्या होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस है, it's a corporate or it's a business, right? You're targeting, you're speaking to somebody who's the owner of a business. You're speaking to somebody who is the marketing head of a business. You're speaking to somebody who's a product manager. You're speaking to somebody who's in procurement, right? तो इसमें ऑडियंस अलग है। अब ऑडियंस को क्या चाहिए, वो ऑडियंस को क्या चाहिए, they want something where you are selling the company properly, or the brand properly to another, brand. So आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड चॉइसेस हैं, आपकी जो मोटिवेशंस है फॉर राइटिंग विल बी वेरी डिफरेंट टू B2C। लेकिन एक फर्क हुआ है टुडे वेयर you are seeing a lot of B2B writing almost sounding like B2C writing, यानी उसमें भी थोड़ी पर्सनलाइजेशन आई है, कस्टमाइजेशन आई है, थोड़ा इमोशन आया है, राइट? तो ये लाइन बहुत थिन होती है, इट्स अ वेरी थिन लाइन, बट द डिफरेंस इज, इफ आई पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, B2C और B2B, it doesn't matter, it's H2H. You know what H2H is? No. It's human to human. Okay, got it. Forget about B2B and B2C. आप एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू-वे कम्युनिकेशन। सो ब्रांड आपसे बात कर रहा है, आप भी ब्रांड से बात कर सकते हैं। तो वेदर इट इज B2B और B2C doesn't matter as long as उसमें H2H. You have to know the human truth behind the product. You have to know the human truth behind the person. वो आप समझ लो तो आपकी राइटिंग, आपके आइडिएशन, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाए। You have also worked with Indian advertising agency and also with international advertising agency. So Yeah. उन दोनों के वर्किंग कल्चर में और क्रिएटिविटी को अप्रोच करने में लाइक कोई मेजर डिफरेंस है, या फिर लाइक क्रिएटिविटी इज लाइक यूनिवर्सल थिंग, तो सब जगह सेम है, लाइक ऐसा कुछ है? So creativity is universal because at the end of the day, you are trying to solve a problem with creativity. Creativity का मतलब है आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, राइट? I'll give you an example. For example, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर जो क्रिएटिविटी से म्यूजिक कर रहा है, उसकी सोच क्या है कि ये जो धुन है वो आपके जहन में आ जाए, आपके कानों को अच्छा लगे और आपके जहन में आ जाए। अगर कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो उसकी सोच ये है कि ये पेंटिंग शुड मेक यू थिंक, you should look at the painting again and again and derive some emotion out of it, right? So whether that painter is in Italy or whether that painter is in India, that process of expression is the same. Okay, अब एजेंसीज पे आते हैं, तो इंडियन एजेंसीज और इंटरनेशनल एजेंसीज में डिफरेंस इज नॉट अबाउट द आइडियाज, इट्स अबाउट द कल्चर। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं दुबई में काम करता हूँ, सो इन दुबई you will end up working with a Lebanese creative director, a British creative director, an Australian creative director, an Arab creative director. उनकी सोच अलग होती है क्योंकि उनके जो
चाइल्डहुड है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो कल्चर है, आप अपनी राइटिंग को अपने कल्चर से लेके आते हो, तो आपकी आइडियाज आपके कल्चर से आते हैं इवेंचुअली. लाइक इन इंडिया वी आर यूज्ड टू ईटिंग दाल एंड राइस, करेक्ट. हम दाल राइस लोग हैं टिपिकली. आप कहाँ भी जाओ, नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया जाओ, आपको दाल और राइस मिलेगा, दाल भात जो बोलते हैं हम. नाउ वेस्टर्नर्स डोंट ईट दाल राइस, right? Unless they go to an Indian restaurant. For them, it is eating bread, eating, a more continental way of eating. They don't spice their food so much. तो रहन सहन ही अलग है ना उनका, तो उनके रेफरेंस पॉइंट्स अलग होते हैं. So when you work with a multicultural environment with different people, you realize that they will arrive at the same idea, but उनके reference points अलग रहेंगे आपसे, right? So that's the only difference. I think otherwise, there's no the cultural क्या बोलते हैं ना, cultural जो एक format होती है वो important होती है. Like in India, when you buy a car, right? Yeah. You will look at mileage because Indians को पेट्रोल का प्राइस बहुत important होता है. पेट्रोल की प्राइस बहुत हाई है, तो जब आप गाड़ी बाय करते हो तो फर्स्ट आप पूछते हो यार, like Maruti did that whole campaign ना, कितना देती है. Yeah. कितना is a very Indian idea. ये कितना देती है यूएस में या यूरोप में नहीं आएगा वो आइडिया, बिकॉज वहां पे मे बी पेट्रोल इज नॉट सो. दे लुक एट लग्जरी, दे लुक एट गाड़ी कैसे चलेगी, परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की, कितनी लग्जरी है. इंडियंस क्या देखेंगे, जितनी भी लग्जरियस गाड़ी हो ना, पेट्रोल माइलेज कितना देती है. सो दैट्स द डिफरेंस. I think the culture is the difference. Okay, like there is one more thing. Sometimes like creative agency campaign create करते हैं और like TVC बनाते हैं और sometimes वो fail भी होती है. तो इस situation में एजेंसी ब्रांड से कैसे डील करती है? See, failure is part of any creative process. Right? You cannot put a creative out there and say they 100% succeed only. Right? And honestly, हम लोग creative success और product success में बहुत फर्क होता है. Right? In advertising, you're not making a movie. Yeah. You're making a movie on a brand. So sometimes, like, there is have you seen Unilever's advertising or P&G's advertising? Similar advertising होती है. It's a Yeah. प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐड. आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, आप कोलगेट लगा, क्लोजअप लगाओ, लड़की पड़ जाएगी आप. Yeah, they are too direct. Yeah, the reason they're direct is because they have to sell. They're effective. उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसमें इफेक्टिवनेस होता है. So now is that you may not like the ad. फेविकॉल सबको अच्छा लगता है, हाँ फेविकॉल क्रिएटिव है. क्लोजअप हाँ ठीक है यार, कोलगेट हाँ ठीक है यार, सेंसोडाइन हाँ ठीक है यार, बट वो करोड़ों में बिकते हैं वो प्रोडक्ट्स, राइट? सो आपकी जो सक्सेस मेट्रिक्स है ना एडवर्टाइजिंग में, अगेन इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स इफेक्टिव क्रिएटिविटी. तो अगर फेल हो जाए तो एड फेल हो जाए तो चलेगा, प्रोडक्ट नहीं फेल होना चाहिए. डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि इस एड के थ्रू इतना मतलब सेल्स हुआ है या समथिंग लाइक? You cannot really measure because advertising is not the only reason why the product is selling. Yeah, agree. Product की selling के लिए marketing important होती है, not advertising. Advertising is just one small circle in a large circle. समझो मैंने बेस्ट एड बनाई कोको कोला के लिए, सुपर एड, जबरदस्त एड, आपको बहुत अच्छी लगी हुआ है, और कोको कोला मिलती नहीं आपके शहर में, तो फायदा क्या हुआ, राइट? सो मार्केटिंग में अलग अलग चीजें होती है. मार्केटिंग में प्राइसिंग होती है, मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अवेलेबिलिटी होती है, प्रमोशन होता है, राइट? दैट इज बिगर देन एडवर्टाइजिंग समटाइम्स. फॉर एग्जांपल, यू विल क्रिएट द बेस्ट एड विद ऋतिक रोशन, सब लोग हंसेंगे, सब लोग बोलेंगे वाह वाह क्या एड बना है, जबरदस्त, और प्रोडक्ट आपको अफोर्ड ही नहीं हो रही है, प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव फॉर द मासेस एंड इट फेल्स. नाउ हु फेल्ड? डिड द एडवर्टाइजिंग फेल और डिड द प्रोडक्ट फेल?
And So product. you can't measure it. Advertising is not the only reason why people, in fact, advertising is not the reason people buy products. Advertising is only to inform and to create an aspiration. पब्लिक इवेंचुअली क्यों बाय करती है? एक, उनको जरूरत होती है प्रोडक्ट की, टू, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और थ्री, वो प्रोडक्ट मिल रही है उनके शहर में, इट्स अवेलेबल इजीली. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इन इंडिया इज द अमूल गर्ल. Yeah. 60 साल से चल रहा है वो एडवर्टाइजिंग. I don't think it contributes to any kind of sales of Amul. Amul will sell. Why? Because it's a great butter and it's reasonable, right? It doesn't sell because they put a hoarding out every week. That is only to create the brand. But that doesn't mean you're creating sales. So we need to separate the two things sometimes. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सुपर एडवर्टाइजिंग हुई और प्रोडक्ट फेल हुई है. वैसे और भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग एकदम बदतर थी लेकिन प्रोडक्ट चल गई. तो लिंकेज थोड़ा डिफिकल्ट हो. और एक चीज और है, लाइक यू आल्सो डू स्टोरी टेलिंग, राइट? लाइक वी ऑल डू लाइक स्टोरी टेलिंग बिकॉज लाइक इन क्रिएटिव फील्ड वी हैव टू डू स्टोरी टेलिंग टू सेल एनी प्रोडक्ट. लेकिन लाइक रिसेंटली आई वॉच्ड अ एड लाइक फ्लिपकार्ट. हैव यू वॉच्ड AC? The OnlyFans one? Yeah. And like there is one more ad, Super Money, like Salman Khan one. तो इन दोनों एड्स में मतलब मैंने क्या नोटिस करा कि लाइक प्रोडक्ट मतलब जो ब्रांड है ना, कि ये फ्लिपकार्ट का एड है, स्टोरी टेलिंग ओके ठीक है, जेंजीज के अकॉर्डिंग लाइक उनको हुक कर रहा है, ओके परफेक्ट, बट ब्रांड रिकॉलिंग यहाँ पे आई थिंक मिस है यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले में. होता है ऐसा. सी, it's not the worry of the ad. Like आपका एक टिपिकल दिन देखो, right? Just imagine your own life as Anisha, right? You are an advertising person. आप क्रिएटिव फील्ड में हो, इसलिए आप एड्स को देख रहे हो. Yeah. आपकी मम्मी नहीं देख रही है ऐसे, आपके डैडी ऐसे नहीं देख रहे, राइट? मम्मी को क्या है कि यार खाना बनाना है, अनीशा पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बड़ा चल रहा है क्या, लाइफ चल रहा है क्या. पिताजी को भी वही प्रॉब्लम है. सो दे आर नॉट वरीड अबाउट एडवर्टाइजिंग. पीपल जनरली डोंट वरी अबाउट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आ जाती है, निकल जाती है. चंद पागल लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग को इतना डिबेट करते हैं और डिस्कस करते हैं. एवरेज जो बंदा है रास्ते पे, उसको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, राइट? उसको अपनी रोजी रोटी कमानी है, उसको अपना जुगाड़ करना है, उसको दिन कब आता है रात कब आती है समझता नहीं है, उसको इंस्टाग्राम पे 50,000 मैसेजेस आ रहे हैं, उसको व्हाट्सएप पे 10,000 मैसेजेस आ रहे हैं, उसको यूट्यूब भी उसके फ्रेंड भी फोन कर रहे हैं, ये भी फोन कर रहा है, माँ बोल रही खाना खाया क्या, बाप बोल रहा है कुछ और. इसके बीच में आपको फ्लिपकार्ट की एड भी याद रखनी है. नहीं होता है. एंड ऑफ द डे नो, वेरी फ्यू ब्रांड्स मेक एन इम्पैक्ट, राइट? एंड उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. Right. अब I'll give a small example. So Fevicol everyone knows as a brand, correct? Now Fevicol का advantage क्या है? Because the advertising is being done for 40 years. और 40 साल पहले या 30 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था. लोग दूरदर्शन ऑन करते थे, एक चैनल था तभी टीवी पे, और दूरदर्शन पे वो ऐड आता था और सबको याद आता था. आज on an average day most people are looking at 7,000 different messages. वो 7,000 मैसेजेस में आप 6,999 भूल जाओ, तो वही प्रॉब्लम होता है. So it's not Flipkart's problem. It's the problem with see, you will not remember आपने कल ब्रेकफास्ट पे क्या खाया, परसों आपने डिनर क्या किया, कौन याद रखता है? Unless you are really like spending a lot of money behind it. कि आप रोज टीवी ऑन करो, रोज IPL देखो, तो रोज आप फ्लिपकार्ट का ऐड देखते हो. बट लाइक अगर नॉर्मल पर्सन भी अगर बोले ऐड अगर देख रहे हैं ना, लाइक फ्लिपकार्ट वन स्पेशली, तो उनको यही नहीं समझ में आएगा कि ये फ्लिपकार्ट का ऐड है. लाइक वो होता है बिकॉज सी अगेन यू हैव ओनली दैट मच टाइम टू टेल योर स्टोरी. करेक्ट. आजकल लोग आप देख रहे हो ना, ऊपर एक लोगो लगाते हैं ऐड पे, जो ब्रांड का लोगो ऊपर लगाता है. So you're seeing Flipkart for 30 seconds, right? So there are various reasons why advertising doesn't work. Okay,
उसके लिए पूरा एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा अपने को व्हाई इट बट सी इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज ना कि आई थिंक पीपल हैव चेंज्ड. आज के कंज्यूमर चेंज हुए. we Yeah. we are very short of memory today. Yeah, we have too many things to negotiate in a day. 30 years back or 40 years back, think about your mother when she was your age. Right? आप अभी 25 साल जो भी हो ना, 22-25 साल की हो, imagine your mom at the same age as you. She had much lesser distraction than you have today. Yeah, agree. ना हाथ में फोन होता था वो टाइम को, ना व्हाट्सएप आता था, ना कुछ आता था. एक फोन था घर पे, एक टीवी थी, एक रेडियो था. राइट? तो वो इरा से आज की इरा में आप इतना कुछ कर रहे हो दिन में, किसको याद रहता है? सो इट्स नॉट अ ब्रांड प्रॉब्लम. आई थिंक सोसाइटी चेंज हुई है, वर्ल्ड चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है. वी आर बिजी, वी आर टू बिजी राइट. And you have also ghost written for so many like CCO or CEO, and you also write post LinkedIn post for yourself. So like दोनों में डिफरेंस लाइक जब आप अपने लिए लिखते हो तो आपके माइंड में लाइक क्या चलता है, और जब आप किसी सीसीओ या फिर सीईओ, क्योंकि हम लोग हम लोगों को उनकी जैसा मतलब सोच के वो करना है कि कैसा वो बोल सकते हैं, कैसा उनका मतलब होगा, तो इस चीज को मतलब कैसे हैंडल करते हो आप? मेरी क्लैरिटी बहुत इजी है उसमें कि मैं खुद के लिए लिखता हूँ तो लिंक्डइन इज माई डायरी. एंड आई कम एंड आई राइट वट एवर आई फील लाइक राइटिंग, टू बी ऑनेस्ट. उसमें कुछ एजेंडा नहीं है, उसमें कुछ मोटिवेशन नहीं है. मुझे अच्छा लगता है लिखना. Today I will write something funny, tomorrow I will write something serious, today I will write something on copywriting, tomorrow I will write something else, right? It's my page, it's my profile, so I can do whatever I want to. Yeah. लेकिन आप किसी और के लिए लिख रहे हो, especially if it is at a C-suite level, right? So if you're writing for a CEO or a chief creative officer, chief operating COO or a CTO or a CXO, all the C's, right? आपको पहले तो you need to understand the person. Yeah. So when I'm writing for a senior person like that, I will not start writing immediately. I have 2 or 3 meetings with that person. I go and spend one day with them in their office and understand what their day is like. And then I spend some time outside of office with them also to understand what they are outside of work, right? उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उनकी व्यू पॉइंट क्या है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, what is their vision, what is their way of looking at things, you know, how do they look at their own industry, how do they look at other industries, what is their political viewpoint, what is their viewpoint on films, movies, music. So I really try and understand them as people then. Once I know that, I look at also their style of speaking or their style of writing, because when I write for them, it shouldn't be shanty writing. Yeah, agree. If it reads like me, then what's the point, right? So I write the way that they will write, and I write the way that they will think, right? And honest बताऊं, जिनके लिए भी मैंने लिखा है ना, वो मेरी कॉपी लेके चेंज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, you know. So a lot of CEOs are very honest. They will say that Shanti very nicely written, अच्छा लिखा है ये, लेकिन ये मेरी आवाज नहीं है अभी. तो वो लोग वो लेके ना थोड़ा अपने स्टाइल में अपने अडेप्टेशन करके डाल देंगे. एंड दैट्स व्हाट इट शुड हैपन एक्चुअली. अगर आप सीधा घोस्ट राइटर का कॉपी लेके आप डाल रहे हो ना अपने लिंक्डइन पे, तो आप बहुत बड़ी गलती. सो आई रियली लाइक पीपल हु से दैट शांति आई लाइक द कॉपी, बट ये मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूँ, मैं खुद को डालता हूँ. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. आज के टाइम पे बहुत सारे लोग लाइक जो न्यू कॉपीराइटर्स हैं या फिर न्यू कमर्स हैं, वो फीडबैक मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, लाइक इट हैपेंस. तो इस चीज से वो कैसे डील कर सकते हो? See, feedback is part and parcel of our life, right? Yeah. आप खुद का पैसा खर्च कर करके खुद की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो अलग बात है. यहाँ पे किसी और का पैसा है. तो अगर आपको फीडबैक लेने में दिक्कत हो रही है या आपको लग रहा है ये मेरे को नहीं जम रहा है फीडबैक, तो लाइक दे से इफ इट्स टू हॉट इन द किचन, गेट आउट ऑफ द किचन, राइट? देन दिस इज नॉट योर वर्क.
फीडबैक आपको सब जॉब्स पे मिलने वाली है यार, नॉट जस्ट क्रिएटिव जॉब्स। आप बैंक में काम करोगे, बॉस फीडबैक देगा। आप Yeah. क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हो तो कोच फीडबैक देगा आपको। आप बॉर्डर पे तैनात हुआ तो आपका आर्मी जनरल आपको फीडबैक देगा। फीडबैक कौन से जॉब में नहीं आता, राइट? So you have to be ready for it. See, the thing is, there are two ways to look at feedback. Firstly, when you get feedback, no, don't immediately react. वो feedback कहाँ से भी आए, whether it comes from your client, whether it comes from your boss, whether it comes from your team, whether it comes from your supplier, whoever you're working with, right? Don't immediately react to feedback. क्यों मालूम है? क्योंकि feedback जब आती है ना, ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंज होने वाला है। सो यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट फीडबैक नेगेटिवली। सो टेक योर टाइम, फर्स्टली रीड द फीडबैक और हियर द फीडबैक एंड डोंट रिएक्ट, ओके? जस्ट इंटरनलाइज इट एंड टेक योर टाइम टू गो बैक विद योर सोल्यूशन। बहुत गलतियां लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट फीडबैक को इंस्टेंटली जवाब देते हैं। Yeah. और वो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज देयर यू आर गोइंग विद योर ईगो, or you're going with your anger, or you're going with your disappointment, you know, कि यार feedback कैसे आया यार, मैंने तो अच्छा किया था, right? Dude, the feedback has come for a reason, no? So first understand the reason why that feedback has come. You don't have to react immediately. No, see, आज क्या हुआ है ना, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि we are so conditioned to notifications. Everything is a push notification today. Yeah. WhatsApp आ जाती है, आप रिप्लाई करते हो। आपको कोई मेल भेजता है तो आप रिप्लाई कर देते हो। तो क्या हुआ है ना, वी बिकमिंग वेरी मशीन लाइक कि वहां से आया, यहाँ से भेजो। तो लाइफ इज नॉट अ टेनिस मैच कि आप कोई आपके कोर्ट में बॉल फेंक रहा है तो आपको वापस वो बॉल फेंकनी है दूसरे कोर्ट में। आराम से थिंक अबाउट व्हाट द फीडबैक इज, टेक योर टाइम टू डिसाइड एंड देन गो बैक। दैट इज द ओनली वे टू डील विद फीडबैक। लेकिन फीडबैक आएगी, वो तो जरूर है। So, like, have you ever, like, you created some idea or campaign, and then when you send that idea to your, like, brands, then they rejected your idea. So, like, इस टाइप की सिचुएशन में कि बिकॉज यू आर 100% कन्विंस्ड कि आपका आइडिया बहुत ग्रेट था, बहुत ज्यादा ग्रेट था, लाइक जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं ना, इवन जो ब्रांड के ब्रीफ में जो भी चेक पॉइंट्स थे, लाइक यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, स्टिल लाइक उन्होंने रिजेक्ट किया। तो इस सिचुएशन से मतलब लाइक कैसे डील करना है? सो यार फ्रस्ट्रेशन तो होती है उसमें, ऑब्वियसली, राइट? आप ह्यूमन हो, आपने अच्छा काम किया, आपको लग रहा है कि अच्छा काम किया है, right? Like you said, it has passed all checkpoints. You are convinced, and there is now again. मैंने जो previous answer दी थी same. If rejection is if the feedback comes as rejection, don't immediately react, right? होगा कुछ reason ना क्यों reject हुआ, so find out वो reason क्या है, from your client or from the marketing manager or the brand manager. Find out कि why have you rejected this. Right? Be open in understanding कि क्यों reject. और अगर आपको लगे कि वो वाजिब reason है, that reason is valid, abandon and say that I will come back with another idea. Right? If you feel even then कि this is not a valid reason for rejection, then you have every right to defend your work. You have every right to resell your work. You have every right to represent your work. But मैं एक स्कूल ऑफ थॉट से ये हूं कि देयर इज अ लाइन व्हिच डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्रिएटिव एंड अ ब्रांड। क्लाइंट के पास एक लाइन होती है, आपके पास एक लाइन होती है। आपको लक्ष्मण रेखा कहाँ क्रॉस करनी है, कहाँ बंद करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू नो योर क्लाइंट वेल फॉर दैट। सम क्लाइंट्स विल रिजेक्ट एंड इफ यू गो बैक एंड से आई डोंट एक्सेप्ट इट and I will justify it. If they believe you, they will go with your feeling. If they still don't believe you, you have no other option but to go back with another solution. So that is the way it is. There is no formula here. आपको इंसान को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, सिचुएशन को परखना पड़ेगा, and be open to rejection. It's very important.
ऐसा कोई बंदा नहीं है, इंसान नहीं है लाइफ में जिसने रिजेक्शन ना देखी। Yeah, इसका agree. मतलब ये नहीं कि आपका काम अच्छा नहीं है या आप अच्छे नहीं हो। अ, इसका इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, विच समटाइम्स यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द रीजन, Yeah, यू नो। we got इट्स लाइक attached to आप, our ideas. या इट्स लाइक यू वोन अ ड्रेस इन द मॉर्निंग एंड योर मम्मी टेल्स यू, अरे क्या पहना है आपने। अब यू कैन टेल योर मदर एनीथिंग राइट, बट शी इज लाइक ना, चेंज। Yeah, सो शी agree. इज द क्लाइंट इन दिस केस, राइट, शी इज द क्लाइंट इन दिस केस। अभी क्या बोलोगे आप मम्मी को जाके, थोड़ी आप झगड़ा करके बैठोगे पूरा टाइम। नहीं ना, इवेंचुअली यू टू, सो अंडरस्टैंड द लाइन, वेयर द लाइन इज। ब्रांड्स होते हैं वो अपने लाइक जो ब्रीफ होते हैं वो मल्टीपल एजेंसीज को सेंड करते हैं, राइट? या तो अब क्योंकि जो एक एजेंसी है वो ब्रीफ के साथ लाइक मल्टीपल एजेंसीज के साथ भी मतलब वो compete कर रही है, तो उन सब के मतलब लाइक स्टैंड आउट कैसे करना उन सब के बीच से? it really depends on your team completely. Agencies are made or broken by their teams. तो एक तो अच्छे एजेंसीज में अच्छे लोग काम करते हैं, या कोई अकेला काम नहीं करता, यू नो, अनलेस यूर अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर के ऊपर प्रेशर वही होता है कि वो अकेला या अकेली काम कर रही है, राइट। in a agency it's really about how the team approaches the brief. Now there are 2 ways or 3 ways to go about it. अगर आप pitch कर रहे हो for example, तो always go to a pitch with your best ideas, even if they are never going to sell, right? तो pitching जब आप करते हो ना, तो it's a showcase of your creativity. So you should do work that is for you to win the account. एक बार आपने अकाउंट जीत लिया ना, या that is where the problem starts actually. There is this series called Mad Men, advertising या के ऊपर based है। I think Donald Draper वही बोलता है कि the day you win an account is the day you lose it. क्योंकि आपने एक बार जीत लिया ना, तो आप प्रेशर में आ जाते हो कि अभी अब डिलीवर करना है ये अकाउंट पे। So actually technically you're already losing it there, right? So at that point when the relationship happens with the client, then it's reality, then it's your up day to day. You know what, agencies don't lose clients because of creativity, they lose it because of delivery. आप deadlines miss कर रहे हो, या आप नहीं कर रहे हो client को बराबर, आप उसको झूठी कस्में दे रहे हो, वहां पे agencies lose clients, not because of creativity. You may see the problem is, you know what, we mistake creativity to be only creative. No, creativity is deadline, creativity is dedication, creativity is how you speak to a client, how you write to a client on email, आप कैसे उसको हैंडल करते हो, राइट? तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी प्रेजेंटेशन डेक कैसी दिखती है, आप किन लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, यू नो। सो इट्स नॉट जस्ट आपका काम, इट्स आपका तरीका which is more important. So I always believe that there should be a culture and a process that is equally important than the creativity itself. That is what makes the difference for you to win against somebody else. There are agencies which will have great creative people या and they are in the pitch, and you may not have great creative people, but if you are dedicated as a team and disciplined and do something which is effective, you might end up winning the pitch versus somebody who's done better work than you. So it's very subjective. There's a lot of different things. Pricing भी होती है उसमें, आप कितना कॉस्ट चार्ज कर रहे हो क्लाइंट को, वो भी आ जाता है। So you might lose a pitch because of the cost of the pitch. So how can we approach any brand without any brief if we are pitching it the first time? Technically, unless it's a brand new account or a brand new brand, Yeah. You don't need a brief these days. You just go to their social media, उनके YouTube चैनल चेक कर लो, उनका Instagram चेक कर लो, उनका LinkedIn चेक कर लो, Twitter चेक कर लो, Facebook, अगर Facebook पे आजकल कोई है ब्रांड तो चेक कर लो। जितने भी सोशल मीडिया पे हैं उनका काम वहाँ पे रहेगा ना, Yeah. तो पता है कि उनका काम कैसे है, क्या चल रहा है। आप एनालिटिक्स कर सकते हो। There are so many softwares today which gives you
exact analytics of the way the campaigns are doing for them. Then look at brands in the same industry. So वो brands क्या कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, वही इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं. सो सपोजिंग लाइक आई सेड फैशन ब्रांड पे काम कर रहे हो, तो अलग फैशन ब्रांड्स क्या कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ, उनके कंटेंट का इम्पैक्ट क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, राइट. सो यू ऑलरेडी हैव सो मच इंफॉर्मेशन एंड देन फिगर आउट व्हाट इज इट दैट कंज्यूमर इज थिंकिंग अबाउट योर ब्रांड. कंज्यूमर रिव्यूज पढ़ो, go to Google reviews, read what consumers are talking about your brand, because that is where you get a lot of good information. नेगेटिव रिव्यू क्यों आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यू क्यों आ रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है ब्रांड के बारे में, राइट. तो गूगल रिव्यूज पढ़ो या कंज्यूमर रिव्यूज पढ़ो उनके बारे में, वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे आपको. एंड देन टेक ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड सी व्हाट इज इट दैट यू कैन डू डिफरेंट फॉर द ब्रांड, राइट. वो इम्पोर्टेंट. बट एक ब्रांड के पास मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली जो ब्रांड है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, या फिर आपको नहीं पता. आपको आइडिया देनी पड़ती है ब्रांड, आपको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना पड़ता है ब्रांड, राइट. सो इट इज योर आइडिया एट द एंड ऑफ द डे. यू शुड नो योर स्ट्रेटजी, यू शुड नो द मार्केट, यू शुड नो द मार्केटिंग. कॉपीराइटिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग स्लोगन्स. ये सबसे बड़ी गलतफहमी कि यार मैंने क्रिएटिव लाइन लिख दिया, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग लिख दिया. नो. डू यू अंडरस्टैंड द ब्रांड? डू यू अंडरस्टैंड द मार्केट देयर इन? डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द ब्रांड इज हैविंग? डू यू अंडरस्टैंड द चैलेंज द ब्रांड नीड्स टू डू? कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? वो सब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और आपको एक स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ती है उसके ऊपर. स्ट्रैटेजी से क्रिएटिव होता है. क्रिएटिव लास्ट में आता है, क्रिएटिव पहले नहीं आता. कॉपीराइटर सोच रहे क्रिएटिव पहले करो, नहीं होता है ऐसा. तो अगर मैं एक लाइक पूरी प्रोसीजर अगर मैं बोलूं, अगर एक ब्रांड को अप्रोच करने की क्या होती है, तो लाइक क्या हो सकता है वो? You have to distill the DNA of the brand. What is the brand doing right now, and what is it that you're proposing to do, and how will it make a difference to that brand? जो आदमी उधर बैठा है क्लाइंट साइड पे, मार्केटिंग साइड पे, उसको रीजन देना पड़ेगा ना कि आप क्या फर्क ला सकते हो ये ब्रांड में. अब वो फर्क लाने के लिए आपको पहले ब्रांड को समझना पड़ेगा ना. agree. If somebody comes to, if you go to a doctor, the doctor, you will tell the doctor ना, डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं है. अब डॉक्टर आपको देखेगा, आपको परखेगा, स्टेथोस्कोप लेगा, टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसके बाद ही अपना जो डायग्नोसिस है वो देगा ना आपको. थोड़ी आपका मुंह देख के बोलेगा यार अनीशा आपको डायबिटीज है, नहीं. So you have to understand the brand first before you go to the marketing person and say this is what Anisha can do for you or my agency can do for you. The brand manager will say तो है कौन? मुझे मेरा brand पता भी है कि मेरा brand है क्या. You know there are a lot of copywriters who don't even go and see their own product. अपने डेस्क पे बैठे कॉपी लिखते हैं, कभी एक दिन मार्केट भी गए नहीं. आप जाओ मार्केट में, देखो क्या चल रहा है अपने प्रोडक्ट के, जो ब्रांड आप बेचना चाहते हो ना. कभी शोरूम में भी गए हो ब्रांड? बहुत लोग ऐसे कॉपीराइटर्स, लिंक्डइन कॉपीराइटर्स, कभी जिंदगी में वो ब्रांड के शोरूम में भी गए नहीं होंगे, कभी वो खरीदा भी नहीं होगा प्रोडक्ट जिंदगी में. और बड़े बड़े बातें कॉपीराइटिंग की. यार आपको ब्रांड ही पता नहीं तो आप क्या फर्क करोगे वो ब्रांड के ऊपर. You have to live the brand. You have to experience the brand. You have to figure out what is wrong or right with the brand. Then you have to go with the solution. So unless you do that, then it's just my ad is better, your ad is better, my ad is better, your ad. नहीं, उसमें clients are not looking at advertising. Clients are looking at sales. आपकी एडवर्टाइजिंग क्या फर्क लाएगी मेरे सेल्स में? अगर आप रेस्टोरेंट के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो the restaurant marketing manager is not sitting there saying यार अनीशा के मस्त फोटोग्राफ निकालेगी, एक इन्फ्लुएंसर को लेके आएगी, इन्फ्लुएंसर आएगा, खाना खाएगा, बोलेगा बहुत अच्छा है बिरयानी यहाँ पे. ठीक है, करेंगे वो, बट उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? रेस्टोरेंट को लोग आए, खाना खाया और नहीं. सो आई थिंक द डिफरेंस
See, you heard the concept of happy hours, no? Yeah. Happy concept आपको पता है क्या है happy hours की concept? What is the idea behind happy hours? वैसे बेसिकली इसका रीजन ये था कि जो कुछ टाइम, मतलब जो कुछ टाइम था, एक नून का टाइम आई थिंक, उस टाइम पे जो क्राउड था वो नहीं आता था। तो Exactly. इस चीज को ये एक प्रॉब्लम थी, Somebody, इसकी सॉल्व करने की। Yeah. somebody would have gone into a restaurant Yeah. and said, यार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, शाम को डिनर के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन बीच का ये जो टाइम है ना, लंच के बाद का टाइम, वहां पे कोई नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट में। Yeah. रेस्टोरेंट ओनर बैठ के मक्खी मार रहा है, राइट? तो दे मस्ट हैव गॉन बैक एंड सेड, गाइस, आई हैव एन आइडिया, लेट्स कॉल इट हैप्पी आवर्स, लेट्स create a time 6 to 8 in the evening where people can come and eat and drink at 50% off. Now that is a creative idea, that's also a business idea. Happy hours is only the wording for it, but आपने सोचा है कुछ इसके बारे में, वो सोच ज्यादा important. So someone must have thought of a happy hours, no? That is your job. Yeah. One more thing, like आज के टाइम पे लाइक जो न्यू कमर्स है या फिर न्यू कॉपी राइटर है जो कि नॉन क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज मोस्टली समटाइम्स ऐसा ही होता है कि वो लोग नॉन क्रिएटिव बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या उनको लाइक जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग स्कूल है, तो क्या वो उनको पहले उसमें जाना चाहिए एंड देन उसके बाद कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करना चाहिए, या फिर उनकी प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए, या फिर जैसे कॉपी राइटिंग कोर्सेज भी होते हैं, यू हैव लाइक सीन ऑन द लिंक्डइन, सो उनको मतलब कौन सी अप्रोच उनको मतलब फॉलो करना चाहिए? तो मेरे को एक क्वेश्चन है, पीयूष पांडे सर ने कभी कॉपीराइटिंग कोर्स की थी? बट उनका जो एनवायरनमेंट था ना, मतलब उनका जो चाइल्डहुड का, क्योंकि मैंने उनका ठीक है ना, तो लाइफ इज द बिगेस्ट स्कूल, द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इज लाइफ. So first figure out what is happening around you, be observant around you. You should have the observation skill as a creator. जैसे फोटोग्राफर और नॉन फोटोग्राफर में डिफरेंस क्या है? आप वही सीन देख रहे हो, फोटोग्राफर वही सीन देख रहा है, वही सनराइज देख रहा है, लेकिन फोटोग्राफर का फोटोग्राफ अलग रहता है, आपका फोटोग्राफ अलग रहता है. क्यों? आप वही जगह पे खड़े हो फोटोग्राफर के साथ, आपके हाथ में भी सेम कैमरा है, उसके हाथ में भी सेम कैमरा, लेकिन उसकी फोटो आपसे अलग है. क्यों? क्योंकि वो उसका जो आंख है, उसका जो नजरिया है, उसका जो दिमाग है, इट्स ट्यून्ड इन अ डिफरेंट वे टू योर्स. You are just clicking because you're clicking. He is figuring out light, shadow, composition, everything. That is the difference. Now, yeah, if you want to get trained, please go ahead and train yourself. No problems at all. आपको माइका जाके माइका में कोर्स करना है, आपको कोई एडवर्टाइजिंग डिग्री करनी है, डिप्लोमा करनी है, कॉपीराइटिंग कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स करना है, करो यार, नो प्रॉब्लम्स. देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? अच्छे बंदे से करो, नो प्रॉब्लम्स. बुरे बंदे से भी करो, नो प्रॉब्लम्स. लाइफ इज एन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आपने 200 रुपए दिए एक डिश के लिए, डिश बकवास है, अब गए 200 रुपए, ठीक है, तो एक्सपीरियंस कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम नहीं जाओगे आप. So I don't think you should worry about, see, if you want to study, there is no end of studies. Agree. Correct? आपको जितनी पढ़ाई करनी है, जितनी अपस्किलिंग करनी है, जिनके साथ करना है, आपको 12 महीने में 12 कॉपीराइटिंग कोर्स करने हैं, कर लो यार, नो प्रॉब्लम. इवेंचुअली आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा रियल लाइफ. तो पढ़ाई का एक पर्पस होना चाहिए. तो आप वो जो सीख रहे हो, आर यू गेटिंग दैट नाउ इनटू योर वर्क, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, आई थिंक देयर इज नो रूल कि जो ना पढ़ के आए वो सक्सेसफुल होगा या जो पढ़ के आए वो सक्सेसफुल होगा. ऐसा नहीं है, राइट? पीपल डू लॉट ऑफ MBAs एंड देन दे डोंट एंड अप यूजिंग द MBA. इसका मतलब नहीं कि वो लोग अनसक्सेसफुल. बहुत ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जहां पे जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, दे हैव नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, but they are successful. And there are great startups also which have been started by people who have double MBAs and PhDs and they have failed also. तो वही है ना, इसमें Anisha, there is nothing is a formula. There is no formula in it.
अगर फॉर्मूला होता तो सब सब वो फॉर्मूला यूज करते। सी द थिंग इज, लाइफ इज अबाउट two things and two things alone. One is the choice you take, Yeah. and is the luck that comes with the choice. इसमें luck की बहुत बहुत फर्क पड़ता है, luck का, destiny. Lot of talented people are there, lot of talented people, but not everyone is lucky. Not everyone is successful. तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ में. I think you know when you grow older you realize, you look back at your life, no? When you're young you don't realize all this, क्योंकि आप एक you know आप बह रहे हो, आप एक फ्लो में हो. Yeah. आप जब मेरी जाओगे ना, then you start reflecting, यार मैं वहां पे लकी था. I'm telling you, a lot of occasions I've been very lucky, right? As I'm not the best copywriter in the world, there are millions of copywriters better than me, but I might have been luckier than a lot of other people, right? Right place, right time, right brand makes a lot of difference. So इसमें there is no like cookie cutter way of explaining it. मेरा वही है कि आप be happy first. आपने ये प्रोफेशन चूज की है ना क्रिएटिविटी की, तो एंजॉय इट. इट्स अ प्लेग्राउंड, वो प्ले. बच्चा जब पार्क में जाता है और वो स्विंग्स को देखता है, क्या उसके दिमाग में आता है कि मैं गिरने वाला हूँ स्विंग से? नहीं, वो जाके झूलता है झूले से, राइट? दैट्स द थिंग यू शुड डू एवरी डे. एवरी डे गेट अप सेइंग दैट बॉस मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ, कोई मुझे पे कर रहा है मेरी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए. इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसमें ना रूल्स हैं ना रेगुलेशंस हैं. आप जो पहनो, जो खाओ, चप्पल पहन के ऑफिस जाओ, यार कौन क्या बोलेगा आप, राइट? Yeah. So might as well enjoy it. No? Creativity is to be enjoyed. So if you all, you know, if you are young at heart and if you really enjoy what you do, then all these small things, no, कि client ने reject किया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, और कोई client आ जाएगा यार, और कोई दिन आ जाएगा. 100 उसके एक मेरा, ठीक है, चलेगा मुझे. Rather than, you know, like I always say this, you know, imagine आप बैंक में काम करो, आप कैशियर हो, Yeah. आप 8 बजे मॉर्निंग में कैश काउंटर जाते हो, शाम को 6 बजे आपका टाइम हो जाता है. 8 से 6 आप काम कर रहे हो, कैश काउंट कर रहे हो, उसमें से एक भी रुपया आपका नहीं है. आप करोड़ों करोड़ों रुपया काउंट कर रहे हो दिन में, कभी कभी उसमें से एक फूटी कौड़ी आपके नाम में. Is that an enjoyable job or not an enjoyable job? No. Versus you are, as a writer, as a thinker, as a creative, आप के पास ओपन कैनवस है. हर दिन कोई नया क्लाइंट आ रहा है, कोई नई इंडस्ट्री आ रही है, कोई नया चैलेंज आ रहा है, तो क्यों मायूस हो रहे हो उसमें यार? मजा है ना. आज आइसक्रीम क्लाइंट है, कल कोई पेट शॉप आपके पास आ रहा है, परसों कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, चौथे दिन कोई कोई स्टार्टअप लेके आ रहा है, बोल रहा है अनिशा मेरे लिए काम करो. यार इट्स ग्रेट फन यार. You learn so much, meet so many interesting people. So what is there to be मायूस about this? You should thank God कि आपको एक स्किल दिया है ऐसे किसी ने. हर एक करियर में मिड लाइफ क्राइसिस लाइक होता है. तो क्या लाइक क्रिएटिव एजेंसी या फिर क्रिएटिव वर्ल्ड में भी ऐसा मतलब लाइक होता है मिड करियर क्राइसिस टाइप में? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन आजकल मैंने बिगिनिंग करियर क्राइसिस देख रहा हूँ rather than मिड करियर क्राइसिस. The amount of young people complaining at 25 is far more than people at 35 and 45 too. So see, यार career का again I'm going back to the basics, right? As a creative person, आपको पैसे मिल रहे हैं रिस्क लेने के लिए. कोई आप पे रिस्क ले, remember that. Right? When somebody puts 2 crores or 3 crores on a campaign and Anisha is handling that campaign, he's taking a big risk or she's taking a big risk. आपके ऊपर पैसा लग रहा है कि यार अनिशा डिलीवर करो ये अच्छा कैंपेन. अब मैं 2 करोड़ ऐसे ही बोल रहा हूँ, कभी कभी 20,000 भी होता है, doesn't matter. Right? Campaign may be as small as 10,000 rupees, 20,000 rupees, 1 lakh rupees. Even that is money, somebody else's money. So somebody is trusting you with money to say that creative deliver करो. तो क्राइसिस है.
crisis is always there. You have to not worry about it, because end of the day, see क्या हो रहा है ना, I think I'll try and see if this makes sense. आज लोग फ्रीलांसिंग बहुत कर रहे हैं, एंड जब फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, आपके पास दूसरी आवाज नहीं है रूम में. There is nobody else in the room to tell you, Anisha, do this or don't do this, or Anisha, can this be done better, right? वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, because when you're handling everything alone, you don't have a second person to rely on, और वो बहुत जरूरी. That's why people should work in agencies before they become freelancers. You know, learn to work in a group. ग्रुप के जो डायनामिक्स होते हैं, लोगों के जो डायनामिक्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. आप सीधा फ्रीलांसिंग में चले जाते हो ना, फिर आपको ह्यूमन साइड मिस हो जाता है, एंड देन यू आर रिलायंट ऑन योर ओन डिसीजंस. सो क्राइसिस मैनेजिंग इज, सी, पीपल हैव डिफरेंट. वर्ल्ड इज वेरी टफ टुडे, बहुत टफ हुआ है. लाइफ इज नॉट इजी, राइट? आपकी सैलरी है 30,000, आईफोन है 2 लाख का, तो आप सोचो आईफोन की वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी, राइट? ऐसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग आज. जहाँ मटेरियल थिंग्स आर मोर expensive than human things, but the human is chasing the material, and उसके ऊपर अब ये AI आ गया है. So you know, there's this struggle between what you want, what you need to do. I think you should have faith in what you're doing firstly, कि आप क्या कर रहे हो. उसके लिए 2 ही चीजें हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये फील्ड. How are you better than AI? How are you better than another creative person? You can only do that by learning and by executing, and by working with good people. आपको सीखना पड़ेगा अच्छे लोगों से. When I was starting out in copywriting, I had better copywriters who were training me. You know, कभी हेडलाइन मुझे याद है, मेरे एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने मुझे बोला था, मैंने 2-3 हेडलाइन लिखे गया था उनके पास, उनके रूम में. उन्होंने बोला बकवास है ये सब. You write 300 headlines till tomorrow morning. I sat all night and wrote 125 lines because I got exhausted. And I went into the next day after sleeping in office. I went next day into her room. I said, I've not written 300, I've written 125. She didn't read a single one. So I said, why are you not reading? I've done all the work. She's saying, my job was not to see your lines. My job was to make you realize that copywriting is not easy. So don't come to me with your first ideas. Work harder at your first idea. हम लोग क्या करते हैं ना, पहली आइडिया आ जाती है, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. फर्स्ट थिंग, ये आइडिया है क्या, इसमें दम है क्या, वजन है क्या, आपने क्लाइंट को देखा है क्या, प्रोडक्ट को देखा है क्या. So that was her intention of showing me that don't be in a rush. You know, use your head. So हम लोग क्या करते हैं ना, you have 2 decision centers in your body. One is here, one is your heart. Yeah. Most writers यहाँ से सोचते हैं, but advertising में ना कभी ये important होता है. यहाँ से सोचो, फिर यहाँ से evaluate करो. Sometimes like जैसे अभी हम copywriting field में है, अभी हम creative field में है, कोई real life experience ऐसा है जिसमें मतलब feel ऐसा हुआ हो, because you say ना कि you are around 50. So कई लाइक जो मिड करियर क्राइसिस ऐसे फील होता है कि यार ये फील्ड मतलब मुझे स्विच करना चाहिए, या फिर लाइक ये मेरे लिए नहीं है, या फिर लाइक ऐसा कुछ, मतलब कभी मिड लाइफ में कुछ भी हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, because otherwise I wouldn't have continued so long in the field. Yeah. I have enjoyed every day of my advertising business. 27 साल is a long time, you know. So I have enjoyed it because अभी बिगिनिंग में डर नहीं लगा, लाइक जैसे डर तो लगता है, but you have already chosen the profession, so अभी there's no, I mean, once you're like 30, you can't go back and study or do something else. करते हैं लोग थोड़ा, but if you ever start doubting आपने जो career choice ली है ना, तो immediately take a decision about what you want to do. Don't wait for too long. And that's not just about work. It's with everything in life. Shadi, relationships, friendships. You know, if you don't feel comfortable, you're not happy with something, your choice to move. So
I don't think crisis is the right word. I think challenge होता है आपको, because eventually वही होता है क्रिएटर में, प्रोफेशन में बहुत सब्जेक्टिविटी है ना. सो आपको you have to have thick skin. कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई आपको कुछ बोले, you should be able to take that. You should be able to take that rejection. Crisis जब कब होती है, जब आप enjoyment, when you stop enjoying things. The moment you stop enjoying things, I think you should leave. Then you should not put yourself through the process. But then what are you going to do after that? Don't ask me. I don't have an answer to that. Like nowadays, like LinkedIn और personal branding like कितनी important है like सबके लिए, चाहे वो न्यू कमर्स हो या फिर ऑलरेडी स्टेबल कोई पर्सन है, सबके लिए like कितना important है according to you? Important. No, है ना, it is important. At the end of the day, you have the technology and the platforms today. Yeah. So you have every opportunity to put yourself out. Right? आपको Substack पे लिखना है, आपको Medium पे लिखना है, आपको LinkedIn पे लिखना है, आपको Instagram पे पोस्ट करना है, आपको सब जगह पे जाके सब कुछ करना है, कर सकते हो. बट डिफरेंस कहाँ पे आती है ना कि is it reality or is it just your assumed reality? That is, so I have worked with a couple of writers who have great LinkedIn profiles. But जब reality में जब मैंने काम किया था ना उनके साथ, तो मुझे दूध का दूध पानी का पानी नजर, right? So because I'm sure they were using AI, whatever it is, So I think unless you really work with somebody, you don't know how they. I don't go for anything I see on the internet. I take it with a pinch of salt, right? कि ठीक है, अच्छा लिखता है ये बंदा या बंदी, अच्छा काम है, but है क्या reality? If I really give you a brief, will you be able to work to it, right? So that is, I think, the real thing. But build your brand. There's no problems in building your brand. अगर आप reality में, even if you're doing a fake thing, right? See, those who make fake social profiles, some of them get away with it also. Yeah. Correct? People who work with you will eventually know कि reality क्या है. I may not know because somebody's in Delhi, somebody's in Bangalore. You will not know of all your social contacts on LinkedIn. You might not even know 0.5% of them in reality. 99.5% आपको पता ही नहीं कौन है, सिर्फ आपसे कनेक्टेड है कहीं पे सोशल मीडिया पे. तो आपको तो हकीकत पता नहीं है. आपको लग रहा है ये इमेज है ये बंदे का या बंदी की, राइट? दिस इज द सोशल इमेज ऑफ दैट पर्सन. अब रियलिटी में कैसे हैं, unless you work with them, you speak to them, you will not know. So, but build your brand. Please go ahead and I don't like the word personal branding. I think it's more professional branding, in my opinion. हम लोग ने ये personal brand, हाँ, I mean, I see where it's coming from, but it's important to build a professional brand more than a personal. आप professionally कैसे? LinkedIn is more a professional brand than a personal. It's not a last question, but like you are not accused word, but you are actually accused. Like some LinkedIn secret because you got viral just by putting a single dot. Secret, यार, I don't think about what I'm posting on LinkedIn. So firstly, वो जो full stop का जो हुआ था वो गलती से हुआ था. I was on the LinkedIn app and I think by mistake the full stop went. And I came to know later, half an hour or 45 minutes later, when I got messages on WhatsApp saying that why have you posted that full stop on LinkedIn? And I said, मैंने नहीं post किया. And then I realized by mistake, the phone was in my hand, it must have posted or whatever. It started getting viral for some reason. अभी मुझे पता नहीं उसकी reason क्या थी. So I didn't stop it. I said, okay, आने दो, जो होना है. यार, end में क्या है ना कि why somebody virals or why something becomes popular or people start looking at that person, it's like I said, it's luck. Okay, but it's also what you say. Like for example, there are so many people on LinkedIn, correct? There is this girl called Adyasha Roy Tomar. Adyasha, I think that's how she pronounces it. I love her writing, right? Because मैं जब भी उनके लिखे गए पोस्ट पढ़ता हूँ ना, मुझे वो एक पर्सनालिटी झलकने आती है. उनकी एक पर्सनालिटी,
right? And she doesn't always talk about creativity or advertising. She's an advertising person. Yeah. Sometimes she talks about a trip she had to the Himalayas, or about her mother, or about her dad, but वो पर्सनालिटी आती है, वो एक बोलते हैं ना कि एक महक आती है, जब जब बारिश गिरती है एक महक आती है, तो वो एक महक आती है उनके पोस्ट में, एंड आई फील वेरी लाइक आई नो दिस पर्सन, राइट, एंड आई डोंट नो हर, बट आई फील थ्रू हर पोस्ट आई नो हर, राइट. तो वो आई थिंक वो एक कनेक्शन होती है आपके ऑडियंस के साथ. वो कनेक्शन आपने एक बार एस्टैब्लिश कर दिया ना, बिकॉज सी like I said, 99.5% of the people don't know you. They're strangers. 0.5% would have worked with you, or they know you personally. Don't think too much about advertising. Think about work. हम लोग, हमारा दिमाग का टाइम जो है ना लिमिटेड है. So, जितनी फोकस हम अब हमारे काम पे दे, लोगों पे दे ना, ध्यान दे, और खुद पे कम दे ना, तो अच्छा है. We tend to have too many doubts and we waste our time. See, creative energy जो होती है ना, बहुत important होती है. आप अपनी एनर्जी को फोकस करोगे ना, बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में. The best personal branding is what happens outside of LinkedIn. So let's wrap this up with one last question, but there is some twist. You have to answer it using a song. Sure. Okay. So if you had to summarize your life with one song, which one would it be? बाप रे, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बहुत सारे गाने हैं. Summarize my life, my entire life in a song. I have one song which I think is I'll sing it if you don't mind. Yeah. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. वही है मेरी जिंदगी, वो है जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाना चला. सो आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ वेरी हैप्पी. मैंने बहुत चैलेंजेस देखे लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव देखे. बहुत लोग आए गए, बहुत सक्सेस भी मिली, बहुत फेलियर्स भी मिले, लेकिन मैं टिका रहा हूँ 27 साल से ये फील्ड में, क्योंकि मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है जब मैं उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार आज कुछ लिखना है, आज कुछ नया सीखना है, आज की बात करनी है, किसी का पर्सपेक्टिव लेना है लाइफ में, एंड दैट इज इट. यू जस्ट बी कूल अबाउट थिंग्स एंड थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. जिस दिन आप खुद को स्ट्रेस में डालोगे तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, स्ट्रेस अबाउट बिग थिंग्स, लाइक हाउ डू मेक अ कैंपेन बेटर, नॉट वरी अबाउट लोग क्या. For our audience, any last message? I think last message is just really don't be in a rush. I think everyone's in a rush right now. Yeah. ये जो हसल आराम, थोड़ा चिंता मत करो इतनी यार, लाइफ बहुत लंबी है. आप मैराथन रेस में 100 मीटर के बारे में, 100 मीटर का रेस का डर लेके बैठे. लाइफ मैराथन है, लंबी रेस है, तो लंबी रेस का घोड़ा बनो, राइट. सो जो थॉरोब्रेड हॉर्सेस होते हैं ना, उनको फिनिशिंग लाइन दिखती है, लेकिन वो डरते नहीं है फिनिशिंग लाइन से, वो आराम से चलाते हैं अपने फिनिशिंग लाइन की तरफ. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी इन अ कॉन्स्टेंट रश कि मेरे को 25 पे अचीव करना है, 30 पे अचीव करना है, 40 पे अचीव करना है. तो अचीव करने के बाद करोगे क्या फिर? राइट. सब कुछ आपको 25 पे मिल जाएगा ना, फिर आप बोर हो जाओगे लाइफ से. थोड़े गोल्स रखो अपने बारे में. सम गोल्स विल कम, सम मे नॉट कम, बट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू बी, व्हाट इज योर लेगेसी, and try and pass on that legacy to other people. सिखाओ दूसरों को जो आप सीख रहे हो. काम करो अच्छी तरह से, टीम वर्क करो लोगों के साथ. Don't work alone, as far as possible, unless you're forced to. Work with good people, work with bad people, but work. And जिंदगी का रस निचोड़ के ले लो यार, सोई है.
So thank you so much Shanti for joining us today and I hope कि हमारी ऑडियंस हमारी कॉन्वर्सेशन से मतलब बहुत सारी चीजें सीखे और ये हेल्पफुल रहे उनके आगे करियर के लिए. So thank you so much. थैंक यू. Thank you, Anisha, for doing this. I think very important that आप ये conversations कर रहे हो with different people, and I hope it inspires people of your age, other ages to, uh, you know, think about creativity, think about themselves, think about life. So, thank you. Really appreciate it.